Hello dear students, this is Pedivar ma'am. We are going to start with the first unit of paper second, that is the organic chemistry. So what is organic chemistry? It is a branch of chemistry which deals with the study of carbon containing compounds. So in this unit we will study the fundamentals of organic chemistry. Okay, so what is a chemistry? You know that in chemistry there are reactions. So what are reactions? So the reactants combine with each other to form a product. This is a reaction. So what are the things present in the reaction? In the reaction, one thing is the substrate, other one is the reagent. So what is the substrate? Substrate is a species which is being attacked, and the attacker is the reagent, and when reagent attacks on substrate, product is formed. Okay, so in a reaction there are three things: substrate, reagent and product. Substrate and reagent react with each other to form a product. Okay, so during the formation of products there are bond breaking and bond formation. So stepwise study of this process, that is called the mechanism. So during the reaction, intermediate compound is formed which is very reactive to give the product. That state whenever the intermediate compound is formed is called the transition state. Okay, so what are the things which influence the reaction? So basically there are so many things which influence the reaction. First of all, we will see the some electronic uh, influence of on the reaction. So in electronic effects there are four main effects. First one is the inductive effect, second is mesomeric effects which is also known as resonance effect, third one is the electromeric effect, and the fourth is the hyperconjugation. So out of these four, electromeric effect is a temporary effect, and the remaining three are, that is inductive, mesomeric and hyperconjugation, are the permanent effects. So one by one we will see all these effects. First of all, we will see inductive effect. So what is inductive effect? This effect is mainly due to the electronegativity of the atom. Okay, whenever a bond is formed between the two atoms, as we know that in organic chemistry bonds mainly are of covalent type. Okay, so covalent bond is formed due to the sharing of electrons. Okay, that means the electron pair is present in between the two bonded atoms. So if one of the atom is इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एटम का ऐसा पावर जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच सकता है. ठीक है, इतना फिलहाल के लिए इतनी सी बात समझ लो. ओके, सो इफ़ वन ऑफ द एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट विल हैपन, वो अपनी तरफ वो बॉन्ड पेयर खींच लेगा. ओके, तो खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा. उस पर भी डेवलप हो जाएगा जो अपनी तरफ खींच रहा है, और जिसके तरफ से दूर जा रहा है बॉन्ड पेयर उस पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा. तो जो चार्जेस डेवलप होते हैं दैट आर कॉल्ड द पार्शियल चार्जेस. पार्शियल चार्जेस मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. कंप्लीट चार्ज नहीं डेवलप हो रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट शिफ्ट नहीं हो रही है किसी भी एटम पर. वो सिर्फ एक बीच में रहने की बजाय किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा झुक रही है, ऐसा समझ लीजिए. ठीक है, किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा जा रही है. और ये क्यों जा रही है? दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम. तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. अब जो कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर कार्बन से बंधा हुआ बॉन्ड देखेंगे. मीन्स वी विल सी द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन इज बॉन्डेड टू द other atom. Okay, so if this atom is more electronegative than carbon, then the bond pair will shift to that atom, and the partial negative charge will develop on that atom, and a partial positive charge will develop on the carbon atom. Okay, if the bonded atom is less electronegative, that means if the carbon is more electronegative than that bonded carbon atom, then what will happen, the electron pair will shift towards the carbon
okay, and that will create a partial negative charge on the carbon and obviously a partial positive charge on the other bonded atom. okay, so ये जो इफ़ेक्ट है दिस इज़ अ परमानेंट इफ़ेक्ट, मतलब किसी की वजह से ये नहीं होगा, तो ये उन कंपाउंड्स में होता ही है। ठीक है, तो कैसे, अगर कोई एग्जांपल हम समझना चाहें तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में समझो बॉन्ड है। ओके, इफ देयर इज अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन देन व्हाट विल हैपन, as chlorine is more electronegative than carbon, that means the electronegativity of chlorine is more than carbon atom, so the bonded pair will shifted towards the क्लोरीन एटम। ठीक है, थोड़ी सी उसकी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द क्लोरीन एटम। ओके, पार्शियल निगेटिव चार्ज will develop on the chlorine atom and partial positive charge will develop on the carbon atom. So partial charge is represented by the del sign. ओके, डेल जानते हैं आप, तो उस यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। सो पार्शियल चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल साइन। सो क्लोरीन पर होगा डेल माइनस और कार्बन पर होगा डेल प्लस। अब सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों के बीच में बॉन्ड है उनके बीच में एक एरो दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट दिस एरो इंडिकेट्स, दिस एरो इंडिकेट्स द शिफ्टिंग ऑफ electrons, that is the electrons are drawn from carbon towards chlorine. Okay, so this is the direction which is showing where the electrons are being drawn. Okay, so here in the third picture you can see the electron density is more towards the chlorine atom. Okay, so in this so here is the main concept of electronegativity which affects the compound. Okay, and there are two main types of inductive effect. One is the positive inductive effect and the second one is the negative inductive effect. So plus I effect and minus I effect. सो ये कंपेयर कैसे किया जाता है, इनको कंपेयर किया जाता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, कौन सा प्लस आई इफेक्ट होगा और कौन सा माइनस आई इफेक्ट होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को एकदम स्टैंडर्ड बॉन्ड माना जाता है इसके कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो उनके बीच में जो भी है उसे ज़ीरो इफेक्ट कंसिडर किया जाएगा और उससे कुछ कम ज़्यादा जो होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट उसे मानेंगे। सो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स which lose electrons towards a carbon atom are said to positive inductive effect, and atoms or groups which draw electrons away from carbon atom are said to have negative inductive effect। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये क्लोरीन क्या कर रहा है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। ठीक है, कार्बन से अपनी तरफ खुद की तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करने वाला हुआ, तो वो हुआ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला। ठीक है, क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो वो कौन सा हुआ, निगेटिव इफेक्ट वाला। ओके, सो पॉजिटिव इफेक्ट वाले कौन से होते हैं, तो समझो किसी कंपाउंड में कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करके है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके एक कंपाउंड होता है, आप जानते होंगे, उसमें आर ग्रुप, Mg ग्रुप और X ग्रुप होता है। जनरल फॉर्मूला है उसका RMgX। ठीक है, तो R मतलब अल्किल ग्रुप हुआ, अल्किल ग्रुप मतलब उसमें कार्बन है और कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डिंग है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हुआ मेटल। इस मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनके बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कार्बन हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन क्या करेगा, जो बॉन्डेड पेयर है वो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और मैग्नीशियम पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो वो कौन सा इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ठीक है, तो आई बात समझ में, दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
दैट मीन्स प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो जो बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेंगे, मतलब कार्बन से दूर खींचेंगे, तो वो कौन से हो शो इफेक्ट शो करेंगे? निगेटिव इफेक्ट। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे समझो कार्बन की तरफ, ओके, तो वो शो करेंगे कौन सा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो ये जो इफ़ेक्ट है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ये परमानेंट इफ़ेक्ट है, मतलब उस कंपाउंड में वो होता ही होता है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड में किसी भी एटम पर ना तो कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव या ना निगेटिव, लेकिन अगर उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है और हम रिएक्शन करने वाले हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हमको पहले देखना पड़ेगा कि वो जो दो एटम एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करके हैं, तो किस तरीके से उनका बॉन्ड फॉर्म हो गया है। तो कोवलेंट बॉन्ड है तो वो पोलर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इंडक्टिव इफेक्ट पोलैरिटी डेवलप करता है कोवलेंट बॉन्ड में। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ये परमानेंटली शिफ्ट रहता है जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसकी तरफ। ओके, ठीक है, तो इसका जो कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, इस नोट्स में आप देख सकते हैं कि जो भी हैलोजन ग्रुप्स हैं जैसे ब्रोमाइड हुआ, क्लोराइड हुआ, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज़ OH, अल्कोक्सी ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, ये सारे जो ग्रुप है, साइनाइड हुआ, एसिड ग्रुप हुआ जैसे COOH ग्रुप हुआ, तो ये ग्रुप जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और जो मेटल्स है मेनली वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, और भी इसके ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके कुछ और टर्मिनोलॉजीज हम लेटर देखेंगे जब हमें डिटेल में इसकी स्टडी करनी होगी, तो उसके साथ ही हम वो आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टडी करेंगे।